think we should start. We have 47 participants for now. So let's start, guys. So I welcome you all to this webinar hosted by SourceInfi. I'll start introduce myself first. So my name is Jayan Dheer and I led the customer interaction and key account management part at SourceInfi. I joined this organization 3 months back, and prior to this, I was into international logistics. So the agenda of the webinar is because we have conducted a physical event on 3rd of February this month itself, and we received an overwhelming response from the participants. And during event, we got so many feedbacks wherein people are more interested to know that how they can navigate to our panel, how they can sign up, how SourceInfi can help them. So that's where we came up with this an idea that we should do a webinar wherein those who are aspire to be an e-com enthusiastic, or they want to start their career into drop shipping, so will they get to know that how SourceInfi can help them. So before we begin, I would like to invite our founder, Mr. Paras Thakkar, to come and say a few words. Thank you. Over to you, Paras. Hi guys, thank you so much for joining in. Excited to have a crazy session with you guys. In this session, we'll talk a lot about e-commerce. The whole point of us building SourceInfi is to help more and more people do e-commerce in India. Um, while dropshipping is one of the things which will enable you to focus on building your marketing skills, we will take care of all the operational stuff which will help you get good returns. And it is just a first step. We want to help build a lot of brands, people who can create it on their own. We have a very stubborn supply chain from China, and I'm sure once you guys get a grip of dropshipping, you would run behind us and tell us कि यार हमें बहुत inventory चाहिए. So this session has a special guest, Nilay, who's one of the most popular guys and has been a mentor to a lot of people who have had successful e-commerce stores. And today's journey of navigating through our SourceInfi dashboard will help you get more clarity, and we will love to have a Q&A after the end of the session. And whoever starts working with us, we would want to share success stories on these Zoom webinars that we'll keep doing with all of you. So really looking forward for an interactive session. Jayant, over to you. Let's begin, I guess, right? It's 8:38 already. So, Right. Thank you, guys, Paras. let's start. Yeah. Thank you. So, guys, I'll not take much time. Let's start, and I would like to invite Anubhav Jain and Sachin Sharma to take us forward and take us through to the SourceInfi panel. Thank you. Over to you, Anubhav and Sachin. Hi guys, I'm Anubhav this side from SourceInfi, and I'm having Sachin with me for this session. Hi guys, Sachin Sharma this side. So I guess, Jensen, let's start. Yeah, we should. Let's start. Yeah, so we are presenting our screen. Let's understand the SourceInfi panel. I'll ask Sachin Sharma. I guess my screen is visible. Hello? Yes, screen is visible, right? Yeah, okay. Okay, so I'll ask Sachin to take it further from here, from the sign-up process. Yeah, let's go, Sachin. So I basically, think just a request. I think we should do this in Hindi because a lot of guys would want to, understand in our mother tongue, right? So, Definitely. हिंदी में करना चाहिए ये. नीले भाई क्या कहते हो? Right, Paras. I guess keep it English. Okay, I no problem. we have few people from Hyderabad also, so English will be Nice. okay. Some mix of English and Hindi. अच्छा, नदीम खान जी का रिक्वेस्ट है हिंदी में. कोई नहीं, we'll do this and probably और एक सेशन करेंगे specifically in Hindi. I would love to connect with you guys again. ठीक है, over to you, Anubhav and Sachin. I'll just give a quick introduction. These guys have been working with us for a very long time. They understand our systems very well. I believe their journey, they'll take you through the entire SourceInfi journey and how things flow on our panel. So over to you guys. Let's do this. अच्छा जस्ट मुझे कमेंट में दिख रहा है कि हैदराबादी स्पीक गुड हिंदी, तो लेट्स कीप इट इन हिंदी यार. लेट्स डू अच्छा, इट ठीक है यार. हमें एक पोल रखना चाहिए था, पता है कि हिंदी में करना है कि इंग्लिश में करना है. चलो ठीक है यार. Let's So, face. yeah.
नो मोर टाइम। अनुभव, सचिन करो शुरू यार, हिंदी में करते हैं, So कोई बात guys, नहीं। type SourceInfi on Google. We get sourceinfi.com. So this is our website. Okay. So let's just understand the onboarding process. If you click on login or sign up, login अगर आपके पास already existing account है, तो you can click on login. ठीक है? Otherwise, you can click on sign up also. Once you click on sign up, you will navigate to our sign up page. अभी आप यहाँ पे अपना डिटेल्स भर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं कोई एक ऐसे ही रैंडम डिटेल डाल देता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट नंबर. कंपनी नेम में भी जैसे अभी मान लीजिए मैं कोई एक टेस्ट अकाउंट डाल देता हूँ कि shopcart.com या वॉट एवर माई कंपनी नेम इज, वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे. When I click on get started, that's how our dashboard looks like. तो डैशबोर्ड पे सर लैंड होके करना ही होगा हमें. सबसे पहला द फर्स्ट स्टेप इज गो टू सेटिंग एंड गो टू द प्रोफाइल सेक्शन. दीज आर द प्रोफाइल डिटेल्स जो आपको अपडेट करनी होंगी. वंस यू अपडेट दीज प्रोफाइल डिटेल्स, तो होगा क्या कि जैसे ही आपका प्रोफाइल डिटेल अपडेट होता है और या हमारे पास लीड पहुंचती है, हमारा कैम टीम या फिर हमारे जो भी इनसाइड सेल्स की टीम है वो आपके पास आएंगे और दे विल रीच आउट टू यू एंड विल लीड यू फर्दर. So as soon as you get your profile done, अभी हम डैशबोर्ड पे चलते हैं. डैशबोर्ड का एक ओवर. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास फिल्टर्स है. फिल्टर्स में हम क्या कर सकते हैं, हम टुडे का फिल्टर लगा सकते हैं, यस्टरडे का, लास्ट 7 डेज का, लास्ट 30 डेज का. हम कस्टम भी कर सकते हैं. तो नेक्स्ट एग्जांपल, हम लास्ट 7 डेज का एक फिल्टर लगाते हैं. सबसे पहले हमारा रेवेन्यू जनरेटेड, जो भी हमारा टोटल जो डिलीवर्ड प्रोडक्ट होगा उसका टोटल अमाउंट आप हमें यहाँ पे शो होगा. और लास्ट 7 डेज में हमारे पास जितने भी न्यू ऑर्डर्स आए हैं वो हमारे पे न्यू सेक्शन पे शो होंगे. और लास्ट 7 डेज में जितने भी ऑर्डर बुक किए गए हैं बुक शिपमेंट में हमको शो होंगे. और यही चीज़ आगे हमको डिलीवर शिपमेंट में भी शो की जाएगी, सेम एज RTOs. इसके नीचे आपको डिलीवर परसेंटेज भी आपको शो होती रहेगी, RTO परसेंटेज भी. फिल्ड बुक आगे मैं आपको मैनेज ऑर्डर्स में एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज़ क्या है. और मिसिंग SKU वो SKU हैं जो हमारे पैनल से मैप नहीं हुए हैं, जिन्हें या फिर जिन्होंने जो SKU आपने हमारे पे मैप नहीं किए हैं. और यही सेम चीज़ हमारा शिपमेंट डाटा आपको ग्राफ के समझाएंगे. लास्ट हमारा प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट SKU, टोटल शिपमेंट, बुक कितने ऑर्डर हैं, पेंडिंग पिकअप में कितने स्टेटस पड़ा हुआ है, टोटल इन ट्रांजिट कितने ऑर्डर हैं, डिलीवर्ड और RTO. ये हमारा ओवरव्यू है बेसिक. और नेक्स्ट हम आगे आते हैं. सचिन, मेरा क्वेश्चन है कि मिसिंग SKU जो होता है फिर राइट. उसका क्या सोल्यूशन होता है कि अगर वो मिसिंग हो गया किसी वजह से, मैं नहीं मैप कर पाया, तो क्या होगा? आप वो हमें शेयर कर सकते हैं कि आपने जैसे हमारे पूरे पैनल पे SKU से मैप होता है सब कुछ. मैं आपको प्रोडक्ट में आगे समझाऊंगा. जैसे आगे नवर प्रोडक्ट में एक होता है चाइल्ड SKU, होता है पेरेंट SKU. तो ओके, आगे तो आप आगे कवर कर दीजिएगा इस चीज को हाँ प्लीज. जी, मैं ये चीज़ आगे आगे कवर करूंगा कि मिसिंग SKU में कैसे होता है मैप, वो सब मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. बाकी आपको स्विच टू एनालिटिक्स ओके. में है. इसमें भी सेम चीज़ है. लास्ट 7 डेज हमका फिल्टर लगाते हैं. टोटल ऑर्डर्स यहाँ हमको शो हो रहे हैं. GMV हमारा टोटल कितना है, टोटल डिलीवर्ड पे, क्योंकि ये भी टेस्ट ऑर्डर ही है, टेस्ट पैनल है सारा, तो हमको एग्जैक्ट डाटा नहीं दिख रहा है इसमें. डिलीवर्ड क्योंकि हमने टेस्ट ऑर्डर लगाए हैं सारे, तो भी ये डिलीवर्ड नहीं है. सेम चीज़ RTO वाइज भी है. सारे ऑर्डर हमने आज अपलोड किए हैं इसे एज अ टेस्ट पैनल के लिए डाटा डालने. तो तो सारे आप ऑर्डर इसको किसी जेन्युइन डेटा के साथ जिसमें एक्चुअली में ऑर्डर्स हों, अगर आप उससे दिखा पाओगे तो ज्यादा सही रहेगा. और मैं भी आपको थोड़ी देर में एक जेन्युइन डाटा के साथ आपको ठीक है, शेयर करता हूँ सारी चीज़ें. अभी तो मैं आपको ठीक है, बस ठीक है. एक्सप्लेन कर श्योर, रहा हूँ श्योर. क्या होता है. ओके. और यही चीज़ आपको मार्जिन अप्लाइड में शो होगा एज अ ग्राफ कि आपका कितना मार्जिन क्या लग रहा है. और आगे आपको ऑर्डर बाय पेमेंट मोड, कितने ऑर्डर आपको किस पेमेंट मोड के थ्रू आ रहे हैं, COD, कैश ऑन डिलीवरी, प्रीपेड के कितने ऑर्डर हैं, ये आपको एज अ ग्राफ शो हो जाएगा. नेक्स्ट आपको
ऑर्डर बाय कंफर्म स्टेटस, कितने ऑर्डर का क्या, ऑर्डर्स का बेसिकली क्या स्टेटस चल रहा है, बुक्ड कितने ऑर्डर हुए हैं और कैंसिल कितने ऑर्डर हुए हैं, ये आपको शो हो जाएगा पैनल पे ही। और यही चीज़ आपको बुक ऑर्डर बाय शिपमेंट स्टेटस एज अ ग्राफ आपको शो होगी, जो अपने आगे डेटा के साथ शेयर हो जाएगा। आगे एक ये चीज़ नहीं है हमारे पास, डिलीवर्ड बाय स्टेट्स। आपको मान लीजिए आप दिन में 100 ऑर्डर्स लेते हो, अब वो 100 ऑर्डर्स डिफरेंट स्टेट से आते हैं। अब हमको ये भी टारगेट करनी है अपनी ऑडियंस की कौन से स्टेट से सबसे ज़्यादा ऑर्डर होते हैं। अगर हमको कोई फेस्टिवल चल रहा है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में, हम वहाँ वो कवर कर सकते हैं कि किस स्टेट से हमको ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, हम वहाँ पे ज़्यादा अपना रीच बढ़ा सकते हैं। और यही चीज़ हमको ऑर्डर शेयर में दिखता है, वहाँ पे डिलीवर्ड परसेंटेज हमको दिख सकती है कि स्टेट में हमको कितने प्रोडक्ट, बेसिकली हमारा कितना प्रॉफिट दे रहा है एक स्टेट हमको। और यही चीज़ हमको आरटीओ में भी शो हो सकता है कि हम कौन सा आरटीओ कौन। सॉरी टू इंटरप्ट नीले सर। नीले सर, यू वर आस्किंग अबाउट कोई लाइव डेटा जिसका दिख जाता था, है ना? यस। हाँ हाँ, तो मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक है पैनल मेरा, तो मैं उसको प्रेजेंट करता हूँ, उसका ठीक विद है, डेटा समझने की ओके कोशिश करते हैं, है ना? ओके, दैट विल बी फाइन। या श्योर। I guess my screen is visible now. यस यस। या सो ये हमारे पास एक सेलर है, ठीक है? मैं उनका डेटा आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली उनका मैंने लगा दिया ऊपर लास्ट मंथ का फिल्टर। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मेरे को 5000 समथिंग ऑर्डर्स दिए हैं, आउट ऑफ देम 5500 ऑर्डर्स हैव बीन बुक्ड। या अगर शिपमेंट में टोटल कितनी शिपमेंट हमारी क्रिएट हुई है और टोटल डिलीवर्ड शिपमेंट हमारी कितनी है, यही चीज़ हमें आरटीओ में भी शो हो जाता है। और आगे आरटीओ परसेंटेज आपको शो हो जाती है नीचे, डिलीवर्ड परसेंटेज कितनी है, फेल टू बुक कितने हैं। फेल टू बुक में आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि मैनेज ऑर्डर्स में क्या है, एक्चुअली टर्म है क्या ये। और यही चीज़ हमको नीचे शो हो जाती है, शिपमेंट डाटा ग्राफ वाइज। ये हमारा ऑर्डर काउंट है, ये डेट है। आगे प्लीज कंटिन्यू। so let's just continue. Here you can find the shipment data graph, and also you can get the details of your remittances from here. इसको अपन आगे समझते हैं। ये प्रोडक्ट वाइज डिलीवरी है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट चला, ठीक है, उसके कितने शिपमेंट्स और कहाँ उनका क्या स्टेटस है विद रिस्पेक्ट टू एसक्यू। लेट्स जस्ट स्विच टू द एनालिटिक्स व्यू। एनालिटिक्स व्यू पे भी सेम, आप अगर यहाँ पे डेट रेंज लास्ट मंथ लगा दें, ठीक है, तो सेम जो डेटा आप डैशबोर्ड पे देख रहे थे, ये जस्ट एक व्यू के लिए आपके एक्सपीरियंस एक नया बढ़ाने के लिए आपके, कि जो एनालिटिक्स आप एट अ ग्लांस आप देख पाए कि किस बेसिस पे आपका कैसा ऑर्डर आया है, कि टोटल सिंगल ऑर्डर इतने हैं जिसका जीएमबी इतना आ रहा है, आपकी डिलीवरी परसेंटेज कितनी आ रही है और आपकी आरटीओ परसेंटेज कितनी है, ठीक है। मार्जिन अप्लाइड इज बेसिकली वो मार्जिन जो फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर्स के वैल्यू पे बोल दूं कि इफ sourcing fee cost price is 300 rupees कोई प्रोडक्ट का, एंड यू आर सेलिंग इट एट ₹1000, तो वो जो 700 रुपीज है दैट इज योर मार्जिन। तो यहाँ पे वो मार्जिन अप्लाइड है कि आप कितनी मार्जिन लेके चल रहे हैं अपने पर प्रोडक्ट पे, ठीक है। हियर यू कैन फाइंड सब डोनट चार्ट्स कि ऑर्डर्स बाय पेमेंट मोड आपके पास कितने आ रहे हैं, ऑर्डर्स बाय कंफर्मेशन स्टेटस कितने कैंसल्ड है वर्सेस कितने बुक्ड हैं, और जितने बुक्ड हैं उनके शिपमेंट स्टेटस के हिसाब से यहाँ पे डेटा आ रहा है। डिलीवरी बाय स्टेट इज द सेक्शन वेयर यू कैन फाइंड आपकी कौन सी सेक्शन पे कौन से स्टेट की डिलीवरी बड़ी आ रही है, सो दैट यू कैन एनहांस योर टारगेटिंग, है ना। एंड फॉर द इनवैलिड पिन कोड, कई बार आपके पास ऑर्डर जो आते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 और सम रिपीटेटिव नंबर्स, तो यू कैन फाइंड दीज स्टेट्स डिलीवरी। एंड जैसे आपने डैशबोर्ड पे देखा, ये प्रोडक्ट एनालिसिस व्यू, ये प्रोडक्ट एनालिसिस व्यू है कि एसक्यू के साथ कितनी डिलीवरी आ रही, कितना जीएमवी है और उस पर कितना मार्जिन आपने बनाया है। Yeah, we can see your screen. ओके, तो व्हाट एग्जैक्टली आई फॉलो इन प्रोडक्ट रिसर्च। मुझे कोई प्रोडक्ट ढूंढना होता है तो उस समय मुझे क्या मेरे दिमाग में आता है या किस तरह से आई स्टार्ट। सो बेसिकली यार ये
उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने शायद अभी स्टार्ट नहीं किया और दे जस्ट प्लानिंग टू स्टार्ट। उनको कुछ स्टेप्स चाहिए कि कहाँ से वो ऐसे प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं जो वो सोर्स इन्फी के थ्रू सोर्स करके या उनके प्लेटफॉर्म पे हैं, एंड देन दे कैन सेल इट। जो एड चलाने वाला पार्ट है वो चीज़ अभी हम कवर नहीं करेंगे, बट टू सर्च फॉर दैट प्रोडक्ट जो सेल होता है वो हम देखने वाले हैं। सो कुछ बहुत बेसिक से टर्म्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। दिस इज अ फेसबुक लाइब्रेरी, फेसबुक एड लाइब्रेरी। फेसबुक ने खुद ही एक ऐसा टूल बना दिया है जिसकी अब आपको कोई भी और एड लाइक फेसबुक एड का कोई टूल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। दे हैव ऑल द डेटा। बस आपको किस तरह से इसको यूज करना है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने अच्छे प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। ठीक है। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग कि आप जब इस लिंक पे आओगे आपको सबसे बेसिक आप फेसबुक एड लाइब्रेरी यू कैन सर्च इट। जब यहाँ आते हो तो आपको सबसे पहला लिंक मिलेगा और वो लिंक आपको यहाँ लेके जाएगा। ठीक है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज आपको ये देखना है कि आपको जो आपके जो एड्स हैं वो कहाँ चल रहे हैं, एंड लाइक आपको कहाँ पे एड्स लगाने हैं प्रोडक्ट के। आपको इंडिया में ढूंढना है, आपको बाहर ढूंढना है, डिपेंडिंग ऑन योर कंट्री जहाँ पे आप सेल कर रहे हो वो आप लोकेशन चूज करोगे। यहाँ से बहुत सारे लोकेशन, सारे कंट्री ऑल चूज कर सकते हो जो वर्ल्ड वाइड चला रहे हैं। इन आवर केस वी आर गोइंग विद इंडिया बिकॉज मैं अभी इंडिया में रिसर्च करने वाला हूँ, इंडिया में कैसे प्रोडक्ट चल रहे हैं उनके अराउंड ढूंढने वाला हूँ। एंड देन हियर आई विल चूज ऑल एड्स। ये इसलिए बिकॉज जो अदर कैटेगरी है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन और पॉलिटिक्स के अराउंड आपको एड्स दिखाता है, इसमें सारे इंक्लूडेड होते हैं। देन यार व्हेन आई स्टार्ट ना बहुत बेसिक सर्च टर्म से स्टार्ट करता हूँ मैं, जो कि आपको मोस्टली हर एड्स में दिख रहे होते हैं। ठीक है। आप जो भी मोस्ट ऑफ द फेसबुक एड्स देखोगे उसमें ये टर्म्स आपको दिखेंगे जो हम अभी सर्च करने वाले हैं। तो व्हेन यू डू इट, अब लेट्स जस्ट वेट और इसमें अभी थोड़ा सा डेटा गैदर होने देते हैं। इसमें नेट इज स्लो, ओके नो। अब यहाँ पे शुरू होता है हमारा कि वो प्रोडक्ट कैसे पता लगेगा कि वो ड्रॉप शिपिंग वाला है, वो रियल प्रोडक्ट लाइक ब्रांड वाला कोई प्रोडक्ट ना हो। तो उसके लिए बेस्ट यार कि आप उस प्रोडक्ट को ओपन करो, सी कि वो क्या है, वहाँ पे कोई ब्रांडेड कोई लोगो नहीं लगा है, वो कोई ऐसी वेबसाइट तो नहीं इसका उसका ट्रेडमार्क है, ये सारी चीजें आप देखो। और ऑब्वियसली कोई भी वेबसाइट जब आप ओपन करोगे तो ओपन करके समझ में आ जाती है कि दिस इज रियल और कोई ब्रांडेड है या नहीं है। व्हेन यू डू इट, लेट जस्ट स्क्रॉल यार बिकॉज ये ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत जेनरिक है, तो काफी नॉर्मल एड्स भी आने वाले हैं जो आपके ड्रॉप शिपिंग वायरल प्रोडक्ट के अराउंड एड्स, जो पूरा ये कॉन्सेप्ट है ड्रॉप शिपिंग का वायरल प्रोडक्ट के अराउंड एड्स का, वो इतनी इजीली नहीं मिलेंगे व्हेन यू जनरलाइज लाइक व्हेन यू सर्च दिस जनरल टर्म्स। ठीक है। बट आई गेस कुछ 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 तो मिल रहा है। लेट्स सी। हम ओपन कर लेते हैं। देखो जो भी ऐसा ऐड दिखेगा जहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम दिख रही होती है, आई विल ओपन इट। बिकॉज हमारा जो भी ई कॉमर्स अराउंड वायरल प्रोडक्ट्स है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि हम किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो प्रॉब्लम के अराउंड है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आई विल ओपन इट। मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ, आप लोग उनको नोट डाउन कर लो। एंड हम कुछ ऐसे टर्म्स अभी सर्च करेंगे जिसपे श्योर शॉट आपको मिलेगा ही मिलेगा वायरल प्रोडक्ट। बट आई विल जस्ट टू लेट यू नो कि यार ऐसे टर्म्स हम सर्च कर सकते हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ। सो 30% ऑफ, 60% ऑफ, जो एक्चुअली प्योर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं, दे पुट लाइक 95% ऑफ, आपको उस पे भी एड्स मिल जाएंगे। तो उसके थ्रू आपको सर्च करना है। आई गेस एक मुझे ऐड दिखा था अभी नीचे, एंड शायद वो ब्रांड, ये, सो यस, ये एक वायरल प्रोडक्ट है। ठीक है। अब ये कैसे है क्योंकि मैंने ये सेल किया हुआ है इसलिए मुझे पता है। बट अगेन कोई एक प्रॉब्लम सी मुझे दिख रही थी या कुछ ऐसा ऐड दिख रहा था बहुत क्रिएटिव सा। अब ये शायद D2C ब्रांड की तरफ जा चुका है, जो भी वेबसाइट है, जो बंदा इसको बेच रहा है वो प्राइवेट लेबल करके बेच रहा है। बट अगेन दिस इज अ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आपको सोर्स इन्फो पे मिल जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ कि मुझे एक प्रोडक्ट मिल गया। अब मुझे एक टर्म मिल गई है यहाँ पे, हेयर रिमूवल। ठीक है। ये ऐसी टर्म्स हैं जो मुझे ढूंढनी है हमारे उसके एड कॉपी में। बिकॉज जो भी ऐसी एड कॉपीज होती हैं जो वायरल प्रोडक्ट के अराउंड कुछ भी बेच रहे हैं, उनकी एड कॉपीज में आपको ये कुछ सिमिलरिटीज दिखेंगी जहाँ पे वो ऐसे इमोजीज यूज कर रहे हैं, उसके जो गुड पॉइंट्स हैं उनको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये कॉमन होता है। तो आप इसके बाद हेयर रिमूवल निकाल सकते हो इस कीवर्ड को, एंड देन गो बैक, आप एक नया टैब खोलो और उसमें इस टर्म को सर्च कर लो।
मैं यहाँ पे क्यों नहीं बोल रहा, बिकॉज यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च है वो यहाँ कर रहे थे आप। तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा आप अभी और स्क्रॉल कर सकते हो, तो उसको एक आप नए टैब में ओपन करो, जिससे क्या होगा उस नीश के अराउंड फिर आपकी रिसर्च इस टैब में रहने वाली है। देन यू कैन सेव इट, इट्स वेरी इजी, आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और वो सारे से सेव कर लेता है। बट इवेंचुअली अब ये वैक्सिंग के एक नीश है, हेयर वैक्सिंग, जिसपे बहुत सारे वायरल प्रोडक्ट रहे हैं, आते रहते हैं। तो देयर इज अ गुड चांस कि आपको शायद एक वायरल प्रोडक्ट इस नीश में मिल सकता है। नहीं मिलता तो डोंट गेट सैड, हम वापस जाएंगे, हम फिर से थोड़ा रिसर्च प्रोसेस करेंगे, उस प्रोसेस को फिर से शुरू करेंगे, जहाँ पे हम दूसरे प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए। ऐसे कर करके मैं आपको आई आई विल पुट दिस, जो ये लिस्ट है ना कहीं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ईमेल आ गए होंगे तो ईमेल पे शूट कर दूंगा। बट एक जिस कीवर्ड पे मिलना ही मिलना है वो ये होता है, ठीक है। अगर आपने ये कीवर्ड डाला है तो इस पे फॉर श्योर आपको वायरल प्रोडक्ट्स ही दिखेंगे। एंड सी, हमने जैसे ही वो कीवर्ड डाला, ये पहला प्रोडक्ट वायरल प्रोडक्ट है। आई गेस आपको बहुत सारे एड सिमिलर दिख रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बंदा थोड़ा सा स्केल कर रहा होगा इसको, इस वजह से सेम ही बंदे ने बहुत सारे ऐड चला रखे हैं। अब देखो, एक ही, ये सारे सारे एक ही बंदे के ऐड कॉपी, अब दूसरे सेम बंदे के दूसरे मिल गए। अब क्या होगा कि एक वेबसाइट ऐसी मिल जाए जो अच्छे ऐड चला रही है, और ये वेबसाइट कुछ मुझे दिख रही है जो अच्छे ऐड चला रही है। आई विल ओपन इट, मैं इसका ये लिंक कॉपी करूंगा, यहाँ वापस आऊंगा, सॉरी एक और टैब में ओपन करूंगा अपने ऐड लाइब्रेरी का। अब ये सब क्यों कर रहा हूँ, किस तरह से स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं उसको दिखाने के लिए मैं नए नए टैब भी ओपन कर रहा हूँ। अब क्या करना है, जो आप कॉपी करोगे ना उसमें से ये सारी चीजें हटा देनी, बिकॉज हम फेसबुक एड लाइब्रेरी में सर्च क्या करते हैं, जो सबसे ऊपर ऊपर एड कॉपी दिख रही है ना, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इस एड कॉपी में, उन कीवर्ड्स के टर्म्स को हम सर्च कर रहे हैं। तो बेसिकली जो उसके आगे पीछे डोमेन पे लगा हुआ था वो आपके एड कॉपी में नहीं दिख रहा है, तो अगर आप वो ऐड कर दोगे तो शायद उसके एड सर्च ना करे। इसलिए जस्ट रिमूव ऑल द थिंग्स बिफोर एंड आफ्टर ये डोमेन एंड जस्ट सर्च इट, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, उस बंदे के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एड्स तो दिख रहे हैं, उसके जो अभी आपको दिख गए थे यहाँ पर, उसके अलावा आपको उस बंदे के सारे और प्रोडक्ट के भी ऐड दिख रहे हैं। और जो भी वायरल वेबसाइट्स होती हैं वो जनरली क्या करती हैं, एक टाइम पे अगर उनके प्रोडक्ट चलने लगे, दे पुश एटलीस्ट 3 to 4 प्रोडक्ट्स एट स्केल। वो स्केल पे 3 से 4 प्रोडक्ट चलाते ही चलाते हैं, बिकॉज अगर किसी दिन कोई प्रोडक्ट का सीपीपी अच्छा नहीं है, डिलीवरी अच्छी नहीं आ रही है, तो बाकी प्रोडक्ट उसको मेंटेन कर लेते हैं। सो दैट्स वाई अब देखो, आपको एक प्रोडक्ट दिख रहा था, ये दूसरा प्रोडक्ट आ गया इसका, मे बी हम थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो कुछ और प्रोडक्ट इसके दिख जाएंगे। फिर क्या होता है कि जो ये 3 in 1 मैजिक ब्रूम है, ये कीवर्ड है। अब मुझे इस वेबसाइट के तो सारे ऐड दिख गए, मुझे ये देखना है कि अब सेम कीवर्ड पे और कौन सी वेबसाइट ऐड चला रही है। तो मैंने वो कीवर्ड पिक किया एंड देन जस्ट एक और नया टैब खोला, आया एंड देन मैंने वो कीवर्ड डाल दिया। अब इस कीवर्ड पे जो भी बंदे ऐड चला रहे होंगे मुझे वो मिल जाएंगे, जिससे मुझे और वेबसाइट्स मिल जाएंगी, एंड ये फ्लो चलता रहेगा। बिकॉज एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ही कॉमन है ड्रॉप शिपिंग में, एवरीवन कॉपीज एवरीवन। सो वहां पे मेहनत नहीं करते हैं, दे जस्ट कॉपी द टेक्स्ट पार्ट और सब कुछ। उससे क्या होता है कि वो एड लाइब्रेरी में बहुत इजीली मिलने लगती हैं एड्स उनकी, ठीक है। तो ये अगर आप फ्लो फॉलो करते जाते हो एंड यू स्टार्ट मेकिंग लिस्ट, आफ्टर 2 to 3 आवर जो आपके पास एक लिस्ट प्रिपेयर होती है ऑफ 10 to 20 वेबसाइट्स जो अच्छे स्केल पे ऐड चला रहे हैं, सिर्फ उन जो भी वो स्केल्ड ऐड चला रहे हैं ना, आप उन प्रोडक्ट्स को उठा के यू स्टार्ट रनिंग एड्स एंड देयर इज गारंटीड सेल। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप उससे उतना ज्यादा प्रॉफिट बना पाओ या उससे ज्यादा कर पाओ, बिकॉज ऑब्वियसली जो स्केल पे कर रहा होगा वो आपसे बहुत पहले कर रहा है, उसने काफी फंड लगा दिया होगा, तभी शायद वो स्केल कर रहा होगा। बट कोई भी प्लेयर 100% ऑफ द मार्केट कैप्चर नहीं करता है, देर इज ऑलवेज एन स्कोप। आप एड कॉपी अच्छी बना सकते हो, आप अपनी टारगेटिंग अच्छी कर सकते हो, देर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑप्शंस इन एड्स, बिकॉज यहाँ पे सब लोग कॉपी कर रहे हैं काफी सारी चीजें। तो आप वो डिफरेंट होके शायद उनसे ज्यादा अच्छा सीपीपी भी ले सकते हो, बट दैट ऑल डिपेंड कि आप एड्स किस तरह से चला रहे हो। सो एक तो सबसे इजी प्रोसेस ये है। अब किसी ने वो कोई सोच रहा होगा कि यार यहाँ पे जो एड्स हैं वो तो सबको सबके पास है, मुझे कुछ देखना है कि किस तरह की और एड्स मैं ले सकता हूँ, बिकॉज
जस्ट कॉपी पेस्टिंग वोंट वर्क, आपको थोड़ा सा अलग मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, आपने प्राइसिंग ले ली सोर्स इनफी से, जो भी था आपका सारा कुछ फाइनलाइज हो गया है, आपको ऐड कॉपी चाहिए, तो आप ऐड कॉपी के लिए कोई भी बंदा, जो एडिटर होते हैं आजकल फाइवर पे बहुत सारे फ्रीलांसर एडिटर होते हैं, आप उनसे कनेक्ट करिए एंड उनको पर्टिकुलर एड्स के रेफरेंस दीजिए। आप ये तो दे दोगे बिकॉज ये तो हर कोई दे रहा है। अब और कहाँ ढूंढ सकते हैं, तो उसके लिए एक वेबसाइट जो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, और इसको कैसे फ्री यूज करेंगे वो ट्रिक भी मैं दे देता हूँ। सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग, आप अपने रिसर्च प्रोसेस में भी यूज कर सकते हो, एड कॉपीज ढूंढने में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एड्स पे गया, जो मैंने वहां सर्च टर्म किया था अपने एड्स में, मैं उसे सेम यहाँ पे सर्च कर लूंगा। अब शायद सिमिलर नहीं मिले, तो मुझे कई सारे टर्म्स के साथ सर्च करना पड़ सकता है। मैजिक ब्रूम हो गया, 3 in 1 मैजिक ब्रूम, तो कहीं ना कहीं उसकी दूसरी एड कॉपीज मुझे मिल जाएंगी, जो शायद अभी रिसेंट में नहीं चल रही हैं, पहले चली हुई हैं। देखो आप यहाँ पे ऐड कॉपीज जो पिछले साल चली थी इस टाइम पे, वो भी यहाँ पे हैं। सो देर इज ऑलवेज स्कोप कि आप कोई ऐसी ऐड कॉपी ढूंढ लो जो थोड़ी सी डिफरेंट है और पहले बहुत अच्छी चली हुई थी। सो यू कैन पिक द लाइक क्लिप्स फ्रॉम दैट वीडियो एंड स्टार्ट यूजिंग इट। तो किसी को डाउट जो हमने अभी तक डिस्कस किया? हेलो? So Nilay, I या think like most of the guys would feel that how to find most relevant ads कि as of now market में क्या चल रहा है, कौन सी video creatives are most recent, most relevant, how do people find that? सो फॉर दैट, ये जो आपका रिसर्च प्रोसेस है, ये आपको दिन में लाइक एक ये ऐसा प्रोसेस बन जाना चाहिए कि आपकी लाइफ के साथ चल रहा है। सो फॉर मी, व्हेन एवर आई एम स्क्रॉलिंग फेसबुक और इंस्टा, वो प्रोडक्ट रिसर्च का पार्ट होता है। बिकॉज फेसबुक क्या करता है, व्हेन यू स्टार्ट सर्चिंग ऑल दीज एड्स ऑन इन एड लाइब्रेरी, और आप उसकी वेबसाइट पे जाते हो एंड यू जस्ट स्क्रॉल वेबसाइट और उसको थोड़ा सा व्यू करते हो कि इसके साइट में मे बी चेकआउट कर लोगे, देन फेसबुक को क्या लगता है, यू आर इंटरेस्टेड इन ऑल दीज प्रोडक्ट्स। हम्म। सो वो अगर आपने क्रैक कर लिया कि आपकी जो आईडी है वही आपके लिए प्रोडक्ट रिसर्च का काम करना शुरू कर दे, हाँ। देन इट्स उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। मैं वही करता हूँ, क्योंकि Exactly. मेरी प्रोफाइल व्हेन आई स्क्रॉल, मैं शायद अपने दोस्तों की एक पोस्ट देखता हूँ और 4 ऐड दिख जाते हैं मुझे। सो हाँ। जब आप वो कर लेते हो, तो आपको सबसे रीसेंट जो शायद अभी बंदे ने चलाई है एंड इट जस्ट 100 व्यूज, फेसबुक वो वीडियो भी आपको रिकमेंड कर देता है, बिकॉज उसको लगता है कि ये शायद सबसे पोटेंशियल बायर है आप उस वेबसाइट का। तो बेस्ट वे तो वही है, अगर आप खुद मैनुअली सारी वेबसाइट जो भी आप रिसर्च कर, जितना ज्यादा रिसर्च करो उस सारी वेबसाइट पे जाके विजिट करो, यू ओपन इट, यू स्पेंड सम टाइम, उसका चेकआउट कर लो वहां पे, देन ड्रॉप इट। उससे क्या होगा, एक तो ये भी आइडिया लग जाता है कि चेकआउट करने के बाद बंदा को इंटरेक्शन कर रहा है कि नहीं, लाइक जिसकी वेबसाइट थी, क्या वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा है, क्या वो मुझे ईमेल कर रहा है, क्या वो मुझे एसएमएस भेज रहा है। तो उससे आपको और मार्केटिंग आइडियाज लगेंगे कि कैसे आप अपने स्टोर पे वो सारी चीजें अप्लाई करके अपने अबेंडेंट कार्ट को इम्प्रूव कर सकते हो, सेल्स और बढ़ा सकते हो। तो वो एक पूरा पार्ट ऑफ गेम है, जब आप शुरू करते हो देन एक फ्लो बनता जाता है। बिकॉज ये जो एड लाइब्रेरी का मेथड है, ये मैं 8 से 10 घंटे एक साथ कर सकता हूँ। इट्स Exactly. ओनली बिकॉज देर इज नो लिमिट, एक कीवर्ड के बाद दूसरा कीवर्ड, दूसरे कीवर्ड के बाद चार और वेबसाइट, उन 4 से 50 प्रोडक्ट, एंड वो कुछ मतलब कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ के बाद खत्म हो जाएगा। मैं आपको अब एक बेसिक टूल है, कॉमा फीड, मैं इसका भी एक आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम खिंच गया है। दिस इज द लास्ट, मैं बताता हूँ कि ये रिसर्च करके मैंने कितना डेटा कलेक्ट कर लिया जस्ट बाई सेविंग ऑल दीज वेबसाइट। मैं सारी वेबसाइट्स को देखो सेव करता था, तो मेरे पास इतनी वेबसाइट्स का डेटा है। जो भी ये प्रोडक्ट अपलोड करती हैं, मेरे पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है, मैसेज आ जाता है, एंड आई कैन जस्ट कॉपी Nice. पेस्ट ऑल दिस। तो इट जस्ट कि आप किस तरह से इस मेथड को यूज कर रहे हो। बिकॉज एक बार आपने वो सारे डेटा बनाना शुरू कर दिया, तो लाइफ लॉन्ग आपके लिए एक खजाना बन जाता है। क्योंकि बहुत जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, वो तो रेगुलर कुछ ना कुछ नया डाल रही होती हैं, और आपको डेली प्रोडक्ट रिसर्च करने की जरूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ ऐसे ही कोई अपनी लिस्ट ओपन करनी है और आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे। या Okay. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। किसी को So, प्रोडक्ट रिसर्च के अराउंड डाउट हो तो वी विल टेक इट इन Q&A पार्ट। नाउ आई विल हैंड ओवर इट टू अनुभव एंड सचिन
to carry on the session. Thank you, everyone. अभी तक हमने देखा कि हमने साइन अप करना है, साइन अप के बाद केवाईसी प्रोसेस का हमने फ्लो देखा था, उसके बाद हमारा डैशबोर्ड चल रहा था कि डैशबोर्ड पे कौन सा डेटा क्या आता है, इसकी जो भी टर्मिनोलॉजीज है वो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक बार है ना अनुभव, Sorry. let's slow this down. So basically analytics पे आपके orders, GMV, delivery percentage, RTO दिखते हैं. आप कभी भी कोई डेटा को फिल्टर कर सकते हो. Yeah. Usually margins are what is an indication. The higher the margin you have, the more remittance you will get. Lot of people now have a registered store, so people also try prepayment. Prepayment is effective when you have a website which is running for a longer time, which has good conversions. At times all orders cannot be booked. कैंसिल कर देते जहाँ पे फेक एड्रेस हमें लगता है, तो वो सेलर लेवल पे डिपेंड करता है कि उसको कितना डिटेल में वो वेरिफिकेशन करना है. आपके जो भी ऑर्डर्स शिपमेंट में कन्वर्ट होते हैं उनका डिटेल ब्रेकअप ये वाले पाई चार्ट में दिया गया है. स्टेट वाइज डिलीवरी परसेंटेज हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई कौन से स्टेट में आपकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस ज़्यादा है. तो पीपल व्हेन दे स्टार्ट कुछ टाइम के बाद वो नैरो डाउन कर देते हैं on how to which state should they focus on. Probably this is a trick which Nilay will help us cover in our later webinar sessions on how to monitor detailed delivery percentages. We also have product analysis on our dashboard, which Anbu, can you scroll down? Yeah, definitely. So for example, people when they start, it is all about finding a winner, right? A hero product. So if you see this particular account has 3 different products which are being tested by the dropshipper. जिसमें से कुछ प्रोडक्ट्स की डिलीवरी बहुत खराब है जैसे कि बायोटिन, बट कुछ प्रोडक्ट्स की डिलीवरी अच्छी है विच इज 50%, एंड कुछ मीडियम रेंज में है जो है 30%. So basically, this is an overview of our dashboard. You can go to products. Before we go to products, let's go to settings. Let's just show how channel integration work. So हमारे पास Shopify और WooCommerce दोनों के integrations हैं जो कि न्यू चैनल में जाके दिखते हैं. Once you click on integrate Shopify, कुछ basic details हैं जो Shopify provide करती है. We will share you a video of how this integration works because it's a very simple process, and this will take a lot of time if we do it now. We are already late, so we will cut down on this part. So जैसे कि आपने आपको निलय ने बताया प्रोडक्ट्स का रिसर्च करते हो. प्रोडक्ट का रिसर्च करने के बाद आप प्रोडक्ट्स एक्चुअली विजिबल देख सकते हो. प्रोडक्ट्स पे जा सकते हो अनुभव. सर या सो जैसे कि आपने मल्टी फंक्शनल चॉपर देखा था, तो लेट्स जस्ट सर्च चॉपर. चॉपर सर्च करने से रेलिवेंट चॉपर रिलेटेड जो भी टाइटल रहेगा वो सारे आ जाएंगे. सो वी हैव समथिंग लाइक ये जो 9-in-1 था जो हमें वहाँ पे देखा. पीपल आर सेलिंग दिस एट $1,000. इट्स लिस्टिंग प्राइस इंक्लूडिंग शिपिंग इज 330. So once a product is shortlisted, there is also an option to sort your price range. If you're looking for cheaper products, you can just go to uh, sort from low to high. If you feel that you want to sell it to a premium niche and you want to sell high value products, you can sort it from high to low. So as you can see, Chopper are available in multiple variants and options. Whenever you pick a product and whenever your store is integrated, all you need to do is click on import list. You just click on a product and you will get this option of add to import list. Add to import list करने के बाद import list में जाके आपको कुछ भी customization करना है with respect to the chopper आप कर सकते हो. जैसे कि आप अपना आप मान के चलो एक वेबसाइट चला रहे हो which is focused to audience which is just relevant to say हिंदी content. तो आप इस कंटेंट को अपने आप अपडेट कर सकते हो यहाँ से. और शॉपिफाई पे आपको क्या प्राइस पे सेल करना है, क्या कंपेयर प्राइस दिखाना है. तो शॉपिफाई पे हम लोग 999 में अगर बेचना चाह रहे हैं तो हम 999 डालेंगे. अगर हमें कंपेयर प्राइस भी दिखानी है कि 2000 की दिखानी है तो 2000 पे दिखाने के बाद अपने आप 50% दिख जाएगा. सो सिलेक्ट द चैनल अनुभव एंड लेट्स पुश इट. या यस
सो दिस इज अ रिक्वेस्ट, क्योंकि बहुत मल्टीपल ड्रॉप शिपर्स एक साथ प्रोडक्ट चलाते हैं, तो आपको आपके कैंप से वेरीफाई करना है बिफोर स्केलिंग एनी प्रोडक्ट की उसकी इन्वेंट्री कितनी अवेलेबल है. So, so you see that this order has been pushed to, this product has been pushed to the store. Anubhav, let's just show them, right? कि कौन सा स्टोर पे ये पुश हुआ है, उसकी यूआरएल एक बार खोल के वेरीफाई कर लेते हैं. वी विल शोकेस इट टू. हाँ, तो बेसिकली ये यहाँ पर पुश हुआ है हमारे पोर्टल से, ये ऑटोमेटिकली शॉपिफाई स्टोर पे क्रिएट हो गया है. नाउ नाउ एनीवन कैन जस्ट क्लिक ऑन ऑर्डर, ऑर्डर नाउ. और आप डिटेल्स डाल दो अपनी. Yes, so the Yeah, the orders have been placed. order is confirmed by the store. Order number भी generate हुआ है, and we have to go in. So once any order is received, right, वो आपके pending section में जाएगा. Pending orders में I guess वो हमारा SKU नहीं था सर. अच्छा, हाँ, हमारा SKU नहीं था. Okay, Yeah. no problem. Just go to. We have some more orders. We can elaborate that from the all order section, sir. Exactly. Yeah. तो बेसिकली जो भी ऑर्डर आपका न्यू होगा वो आपको न्यू सेक्शन में दिखेगा. न्यू सेक्शन में आपको बेसिकली ऑर्डर कंफर्म करना है, क्योंकि बहुत ड्रॉप शिपर्स कहते हैं कि हमारी कस्टमर एक्सपीरियंस हम कंट्रोल करते हैं. तो लॉट ऑफ गाइज वांट टू वेरीफाई ऑर्डर्स ऑन देयर ओन, दे कॉल कस्टमर ऑन देयर ओन, और जो भी ऑर्डर उन्हें लगता है कि प्रोसेस करना है वो न्यू में. हाँ, तो बेसिकली न्यू में अप्रूव का ऑप्शन है. सो This option. once any order is approved by the dropshipper, it goes to waiting for acceptance. Waiting for acceptance का स्टेप इसलिए दिया गया है कि वेंडर के पास जब ये ऑर्डर पहुंचता है, वेंडर कंफर्म करता है कि हाँ, ये मैं ऑर्डर शिप कर पाऊंगा, मेरे पास स्टॉक है. कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वेंडर कहता है कि यार ये प्रोडक्ट आपने मेरे को 100 ऑर्डर भेजे, बट एज ऑफ नाउ मेरे पास 50 स्टॉक अवेलेबल है. तो उस केस में हमारी टीम उस ऑर्डर को दूसरे सप्लायर पे मैप कर देती है. ये 10% ऑफ द चांस होता है. And once an order is accepted by our vendor, it goes to the confirmed tab. यहाँ पे confirmed orders दिखाई देते हैं, मतलब ये ऑर्डर श्योर शॉट डिस्पैच होने वाले हैं. कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं, which for us it takes 2 hours time to update it to a supplier and get it confirmed, and 90% of the time these orders get dispatched on the same day. Now, the moment an order is confirmed and the shipping process is started, vendor will generate the shipping, and the status of the order would be changed to booked. बुक के ये मतलब हुआ कि हाँ, आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग में है. और बुक के बाद जैसे ही सारे ऑर्डर्स पैक हो जाते हैं, हमारा सप्लायर उसको पेंडिंग पिकअप में मूव करता है. यहाँ पे सोर्सिंग की लॉजिस्टिक्स टीम का रोल शुरू होता है. वो लॉजिस्टिक्स टीम के साथ इंटरेक्ट करके they figure out what is the pickup slot and what time would the courier come. तो ये हमारी logistic team vendor टीम के साथ coordinate करती है. The moment an order is picked, उसका status change हो जाता है in transit. इन ट्रांजिट का ये मतलब हुआ कि वेंडर के पास से निकल गया, अभी कुरियर वाला अपने वेयर हाउस में लेके जा रहा है. कुरियर वाला वेयर हाउस में लेके जाने के बाद उसका एक जर्नी है, जो मैं ओपन एनी ट्रैकिंग नंबर. तो यहाँ पे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आता है. इन ट्रांजिट हुआ, मतलब पेंडिंग पिकअप था पहले 13 फरवरी को, क्योंकि ऑर्डर. Let me go for the out for delivery, sir. We can find some more tracking numbers. Yeah. Sorry, sir. So if we just go back, go down, right? So the moment a shipment is generated, courier का जो status है वो pending pickup हो गया. courier ने पिकअप अटेम्प्ट किया, वो इन ट्रांजिट हुआ. अभी इन ट्रांजिट होने के बाद वेरियस अलग अलग नेटवर्क के थ्रू वेयर हाउसेज में जाता है. एंड इफ यू सी कि दिल्ली से वो मुंबई पहुंचा, 13 फेब को निकला, और 13 फेब को ही मुंबई के वेयर हाउस के लिए वो इन ट्रांजिट हो चुका है. और मुंबई के वेयर हाउस से वो सिलवासा गया, सिलवासा से वो आउट फॉर डिलीवरी हो चुका है. तो यहाँ पे आप डिटेल्ड, और इस एक्टिविटी को आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी है, कि क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जो स्टेटसेस हैं वो अपडेट
होते हैं और उनको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द मोमेंट इट इज़ आउट फॉर डिलीवरी यू वुड वांट योर कस्टमर्स टू बी नोटिफाइड। तो बहुत सारे केसेस में लोग इस स्टेज पे कॉलिंग भी ड्राइव करते हैं जस्ट टू अश्योर द कस्टमर कि आपका प्रोडक्ट आज डिलीवर होने वाला है, प्लीज़ बी अवेलेबल। एंड अगर आपका कनेक्शन रेशियो अच्छा है इस केस में, और आपका कस्टमर के साथ वो टच एंड फील है, कस्टमर जरूर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज उसको एक लेवल का ट्रस्ट आपके ऊपर आ चुका है। नाउ क्लोज दिस। अभी दो तीन स्टेटसेस हैं यहाँ पे, कैंसल्ड, आरटीओ और डिलीवर्ड। आरटीओ जो शिपमेंट्स रिटर्न हो रही हैं, जो डिलीवर नहीं हो पाई, वो हैं। देर आर वेरियस रीजंस फॉर एनी आरटीओ टू हैपन। प्रॉब्ली कस्टमर अनअवेलेबल है, कस्टमर ने अपना दिमाग चेंज कर लिया है, कस्टमर कह रहा है कि बॉस आई बॉट इट फ्रॉम अ डिफरेंट वेबसाइट, और से यू वर टू लेट फॉर अस टू डिलीवर। सो इसका डिटेल जो भी रिटर्न आ रहा है, रिटर्न होने के पहले एक स्टेप है जिसका नाम, जो बेसिकली एक्सेप्शन स्टेज कहा जाता है। एक्सेप्शन वो शिपमेंट्स हैं जो कि डिलीवर होनी थी बट हो नहीं पाई फॉर एक्स वाई जेड रीजन, जो हमें एनडीआर का एक स्पेशल टैब हमने डेडिकेट किया है। अनुभव, लेट्स ओपन मैनेज एनडीआर। Yeah. हाँ, तो एक्शन रिक्वायर्ड में हमारा मतलब हमारे ड्रॉपशिपर ने एक्शन लेना है। तो आप अगर देखोगे, एक एक जो कस्टमर रिफ्यूज डिलीवरी, अनुभव अनुभव वेट, Sir, sorry. Yeah. Customer refused delivery. हाँ, कस्टमर रिफ्यूज डिलीवरी वाला खोलो, एक बार हिस्ट्री दिखाते हैं। Yeah. यहाँ Let पे me. एक्सेप्शन में इफ यू सी कस्टमर नॉट कॉन्टैक्टेबल, बहुत केसेस में हो सकता है कि कस्टमर का फोन बंद हो, इनकम्प्लीट एड्रेस, पिन कोड। हमारी सिस्टम में ऑर्डर लेवल पे एक टैग करके स्टेटस है जहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें बताई जाती हैं। एक बार अनुभव ऑर्डर लेवल पे वो टैग्स दिखाता है ना, है ना? ओपन इट इन अ टैब। हाँ, Tags आपको, are here. I guess they are not applicable हाँ, for अभी ये इनके लिए टोटली लेवल नहीं टेक्निकल किया नहीं हुआ। है, बट बैक सच अपन एक बार टैग्स वाला भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देंगे। हाँ जी सर। लेट्स गो बैक Let's टू go back to India. इंडिया। हाँ, तो एड्रेस इनकम्प्लीट हुआ, कस्टमर ने रिफ्यूज किया डिलीवरी। अभी है ना, कस्टमर और कुरियर का जो अपडेट होगा ना, बहुत टाइम्स मैच करेगा और बहुत टाइम्स नहीं भी मैच करेगा। मैच होने के लिए जो कॉलिंग की प्रोसेस है वो ड्राइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हमारे वी कैन ऑलवेज, वी हैव अ टीम डेडिकेटेड फॉर कॉलिंग। अब जो भी ड्रॉपशिपर्स को ये एक्सपीरियंस अपने कस्टमर को देना है, वो हमारे थ्रू भी दे सकते हैं। So we can always dedicate, we'll give you a resources who can call your customer, और आपकी एसओपी फॉलो होगी, मतलब जिस तरीके से आपको वो कॉलिंग ड्राइव करवानी है कर सकते हैं। एक्शन रिक्वायर्ड में आपको, आपने मान के चलो फॉर एग्जांपल कस्टमर ने, आपने कस्टमर से बात करा, कस्टमर से बात करने के बाद आपको फीडबैक मिला कि मुझे रीअटेम्प्ट करवाना है, तो रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर कस्टमर कह रहा है कि मेरे को एड्रेस चेंज करना है, मैंने गली नंबर 10 नहीं डाला है, 12 डालना है, वो अपडेट होके ऑटोमेटिकली कुरियर को अपडेट हो जाता है। और कभी कभार लोग अपना फ़ोन नंबर भी अपडेट करवाते हैं, जस्ट इन केस कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैंने बोला कि यार मेरे पापा हैं, मेरे पापा का नंबर डाल दो। और कुछ कस्टमर ओपनली कह देते हैं कि सर मुझे नहीं चाहिए, फॉर एक्स वाई जेड रीजन, आप उसको आरटीओ करवा दो। तो यहाँ से ड्रॉपशिपर्स ड्राइव कर सकते हैं कमेंट। और बहुत केसेस में है ना, ऐसे रहता है कि आपके पास कस्टमर की रिकॉर्डिंग है, कस्टमर जेन्युइनली कह रहा है कि सर मेरे को किसी का कॉल नहीं आया। उस केस में हम वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड करके कुरियर पार्टनर को ऑटोमेटिकली मेल करते हैं। और ये कुरियर पार्टनर को हम जब प्रूफ देते हैं ना कोई भी चीज़ का, वो उसके एंड से 100% अटेम्प्ट करता है टू करेक्ट इट, बिकॉज इनकी एसओपीज अलाइंड है कि अगर कोई भी डिलीवरी बॉय ने अपडेट गलत किया है और हमारे पास अगर उस चीज़ का प्रूफ है, तो द डिलीवरी बॉय विल नॉट गेट इज इंसेंटिव। तो दिस इज अ हाईली इंसेंटिवाइज्ड मॉड्यूल फॉर कुरियर डिलीवरी बॉयज। अगेन, एनडीआर को क्रैक करना भी बहुत अलग गेम है। एंड प्रॉब्ली निलय, वी शुड डू दिस सेशन राइट ऑन हाउ टू क्रैक एनडीआर। ये लोगों के लिए जो स्केलिंग स्टेज पे जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हो सकता है। एंड वी शुड डेफिनेटली हैव अ सेशन ऑन हाउ टू मैनेज एनडीआर। नाउ गोइंग बैक टू योर ऑर्डर्स, अगर आपने यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड से रिक्वेस्टेड में चला गया, फिर Sorry. आपको डिलीवर से आरटीओ पता चल जाता है। डिलीवर वो हुए शिपमेंट्स जहाँ जहाँ पे आप अगर देखोगे कि ऑर्डर स्टेट, लेट्स गो टू मैनेज ऑर्डर्स अनुभव। Yeah.
हाँ, क्लोज स्टेटस में आपको दिखेगा कितने डिलीवर हुए हैं, कितने आरटीओ हुए हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल द फिल्टर्स अवेलेबल ऑन ऑल ऑर्डर्स. लेट्स help people understand How they can all the filter filters. out their, yeah. तो ऑर्डर आईडी से आप कोई भी ऑर्डर आईडी को कॉमा सेपरेट डाल दोगे तो वो सारे ऑर्डर्स दिखेंगे. अगर कोई स्पेसिफिक एसकेयू के ऑर्डर्स आपको देखने हैं उसके लिए वो डला है. प्रोडक्ट नेम इज समथिंग लाइक, यहाँ पे इसने वाइप ऑफ टैग रिमूवल लगाया तो ये सर्च कॉपी पेस्ट करके अपन देख सकते हैं. कस्टमर की ईमेल, फोन नंबर, इनफैक्ट दिस इज सर्च क्वेरी. आपको जो भी सर्च करना है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर डिटेल आप कुछ भी डाल सकते हो. यू कैन जस्ट सिंपली से दैट कौन से चैनल है यहाँ पे वो आप देख सकते हो. आप मल्टीपल चैनल्स कनेक्ट कर सकते हो. आप एक ही ड्रॉप शिपिंग सेलर सोर्सिंग फी का जो पैनल है आप उसमें अनगिनत स्टोर्स ऐड कर सकते हो. अभी बात आती है कि यार डिलीवर हो गया, डिलीवर हुआ या आरटीओ हुआ. डिलीवर के केस में मुझे कितना पैसा पे करना है, आरटीओ के केस में मुझे कितना पैसा पे करना है, वो हमें बिलिंग प्लान में दिखाई देता है. बिलिंग प्लान में आप अगर देखोगे प्राइस प्लान का एक टैब है. प्राइस प्लान में जो भी चार्जेस हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स यू कैन सी. अभी प्रोडक्ट 500 ग्राम का है या 1000 ग्राम का है हमें कैसे पता चलेगा? तो प्रोडक्ट पेज पे आप कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर सकते हो. प्रोडक्ट पेज पे जो भी उसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका वेट, उसके एलबीएच स्पेसिफाइड है कि ये प्रोडक्ट 500 ग्राम में बिल होने वाला है या ये प्रोडक्ट 1 किलो में बिल होने वाला है. बहुत केसेस में ऐसा होता है कि प्रोडक्ट 505 ग्राम का है तो हमारे पास वो फ्रीडम रहता है. हम कुरियर कुरियर को बोलते हैं कि यार सर 5 ग्राम के लिए क्यों हम 1 किलो का पैसा पे कर रहे हैं. तो वहाँ पे बहुत टाइम हमारी टीम लड़के उसका वेट 500 ग्राम में लिस्ट करवा देती है. अभी आप देखोगे कि इसके बैलेंस में -47,000 रुपीज लिखा गया है. दिस इज वाई बिकॉज एवरी प्रोडक्ट विच गेट्स रिटर्न, आपने प्राइसिंग प्लान में देखा रहेगा वहाँ पे चार्ज लिखा है 72 का. अभी इन्होंने जिसे निलय ने रिकमेंड किया कि आप वो प्रोडक्ट से पहले शुरू करो जहाँ पे आरटीओ 72 मतलब 500 ग्राम का है. इज दिस इज बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि एक एक 1000 ग्राम वाले प्रोडक्ट की आरटीओ इज 112 विच कैन गेट वेरी एक्सपेंसिव इफ यू आर इनएक्सपीरियंस्ड और डायरेक्टली 1 किलो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो. उसके भी अलग टैक्टिक्स हैं जो हम लोग हमारे लेटर वेबिनार में कनेक्ट करेंगे. बहुत लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो जीएसटी कंप्लायंट काम करना चाह रहे हैं. तो आपके प्रोफाइल में अनुभव, कैन यू ओपन अ प्रोफाइल? Yeah. हाँ, तो बेसिकली आप प्रोफाइल में अपनी डिटेल्स डाल सकते हो. जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, आई थिंक आई एम गेटिंग अ कॉल. हाँ अनुभव, लेट्स गो बैक टू योर या इनवॉइसेस में जाते हैं. इनवॉइसेस में एवरी ऑर्डर विच गेट्स डिलीवर्ड उसकी एक इनवॉइस जनरेट होती है. बहुत बहुत कंप्लायंट लोग जो हमें जीएसटी फाइल करना होता है उसकी सारी डिटेल यहाँ से मिल जाती है. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स अबाउट आवर प्लेटफॉर्म दैट इट इज कंप्लायंट. आप अगर कोई और प्लेटफॉर्म पे ट्राई करोगे तो आपको इस चीज़ के लिए शायद लड़ना पड़े, बहुत पीछे पड़ना पड़े कि यार मेरे को एक इनवॉइस दे दो, मेरी सेल तो हो गई. ये हम आपको जीएसटी इनपुट भी देते हैं. जीएसटी इनपुट से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि जो भी आप कॉस्ट पे कर रहे हो, सर्विस इनवॉइस पे जीएसटी लग रहा है वो आप क्लेम कर सकते हो. अभी प्रोडक्ट्स में और एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि कोई आपको अगर नया प्रोडक्ट लाना हो जिसकी लिस्टिंग नहीं डली हो तो आपको सिंपली उसकी एक यूआरएल डालनी है. कोई भी यूआरएल आप डाल दो, आपको उस चीज़ की लिस्टिंग विद इन 48 आवर्स मिल जाएगी. अगर वो प्रोडक्ट बिल्कुल ही अनअवेलेबल है तो हमारी टीम आपको अपफ्रंटली बताएगी कि यार इसको टाइम लगेगा, ये शायद इन ट्रांजिट है सी से, उसको कैसे मैनेज किया जाए. तो हमारे पास इंपोर्टर्स हैं जो फिर अगर आप कह रहे हो कि आपको वो इन्वेंट्री करनी ही करनी है तो हम वो स्टॉक कमिट करवा लेते हैं आपके बिहाफ पे. सो दैट यू, सिंस यू रिसर्च a lot, you spent a lot of time cracking the marketing and the sales numbers, you are able to do it with us. So any request which is submitted, उसकी quotations, बेसिकली उसकी कोटेशन हम अलग से अरेंज करके देते हैं. तो जैसे आपने कोई रिक्वेस्ट रेज करी है तो वो न्यू रिक्वेस्ट में जाता है. फिर अगर हमें उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो हम उसको पेंडिंग ऑन सेलर में डाल देते हैं. हमारे एंड से जब भी कोई रिक्वेस्ट क्लोज हो जाती है हम लोग उसको क्लोज मार्क कर देते हैं.
कभी कभार कस्टमर बोलता है कि यार इसको बहुत टाइम लग रहा है, आप इस रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दो। तो दिस इज हाउ द इंक्वायरी फंक्शन वर्क्स विद अस। अभी हमारे हमारे पास इसके बाद रेमिटेंस का मॉड्यूल है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। यार आपने ऑर्डर तो कर लिए, आपके ऑर्डर डिलीवर भी हो गए, आपको पैसा कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है कैसे पता चलेगा? तो जो भी पैसा आपके पास ऑलरेडी आ चुका है वो आपको क्रिएटेड रेमिटेंस में दिखाई देता है। इसमें यूटीआर नंबर भी अपडेट होते हैं, आप अपने बैंक से वेरीफाई कर सकते हो। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आज 13 तारीख है, आज रेमिटेंस डे है। यहाँ पे रेमिटेंस 1,46,000 की क्रिएट हो चुकी है, बट यूटीआर नंबर अपलोड नहीं हुआ है। दिस इज बिकॉज वी एडजस्ट सम अमाउंट ऑफ योर वॉलेट इन दिस रेमिटेंस। तो मान के चलो हमने 20,000 रुके, तो ये 146 माइनस 20,000 में आपको एक 26 की पेमेंट मिलेगी। और जैसे वो पेमेंट क्रेडिट हो जाती है, हमारी टीम उसका यूटीआर अपलोड कर देती है, विच यू कैन वेरीफाई फ्रॉम योर बैंक। अगर आप फिल्टर में जाओगे इसके, तो आपको एक स्टेटस मिलेगा कि ये आपको पेड है कि नहीं है। अनुभव, एक बार पेड अनपेड करके देखो। Yeah. पेड पेड में जहाँ पे यूटीआर डला हुआ है आपको पेड दिखेगा, जहाँ पे यूटीआर नहीं डला हुआ है वहाँ पे आपको अनपेड दिखेगा। अभी आपकी ये सेटल्ड रेमिटेंसेस है, नेक्स्ट साइकिल में कितना आने वाला है वो आपको पेंडिंग रेमिटेंस में दिखाई देता है। तो इनका इनका जो पेबल अमाउंट आज रेमिटेंस क्रिएट हुई है, तो D+2 के हिसाब से ये रेमिटेंस मतलब आज सिर्फ 16,000 रुपीज का शाम को 5-6 बजे के बाद एडिशनल डिलीवर हुआ है। एंड अगेन दिस विजिबिलिटी निलय, ये हमारे ही पैनल पे है ना पेमेंट वाली विजिबिलिटी, और कोई पैनल्स पे है नहीं ना मार्केट में जो हाँ हाँ, है। अभी तो नहीं है। हाँ, अभी एग्जैक्टली तो exactly. नहीं है कुछ। हमारे पास कुछ चीज़ों का एडवांटेज, सोर्सिंग फी एज अ ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म बना है फ्रॉम फीडबैक ऑफ आवर कस्टमर्स। इनफैक्ट अगर आप निलय को पूछोगे 1 साल पहले जब वी वर लॉन्चिंग आरसेल्स अग्रेसिवली, कुछ चीज़ें थी नहीं, उन चीज़ों का बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन फीडबैक से ही हुआ है। तो दिस प्लेटफॉर्म इज बेसिकली फॉर ई कॉम पीपल। हम लोग बहुत ओपन सोर्स हैं इस चीज़ में, वी टेक फीडबैक वेरी सीरियसली और उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, be it in terms of improving our tech, be it in terms of improving our delivery percentage, be it in terms of increasing our customer satisfaction. And best way to engage with our customer is that the moment you sign up with us, the moment you start giving us an order, our team will create a WhatsApp group with you. उस WhatsApp group के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। इनफैक्ट लॉट ऑफ आर गाइस, आज देखो जैसे 10 बज रहे हैं, वी आर एक्टिवली रिस्पॉन्डिंग टू आवर कस्टमर्स 11-12। तो आपको सपोर्ट, जब आप एंगेजमेंट ड्राइव करोगे, जब हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स को आपके एंड से एफर्ट दिखेगा, वो उस एफर्ट को डबल करके आपको आउटपुट निकालेंगे। सो दिस इज समथिंग आई थिंक यू शुड टेस्ट एंड गिव अ फीडबैक। so this is something which I feel will help you through and through with your journey on our platform. सो इसलिए जब मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हुआ तो मैंने पहले सोर्सिंग वाला पार्ट ज्यादा किया, बट वो ट्रस्ट लाने के लिए भी मैंने अपना स्टोर चलाया साथ में। एंड अगर आपको दिखाना है अनुभव, तो आप शेयर कर सकते हो मेरा स्टोर, क्योंकि किसी का कमेंट था कि डिलीवरी बहुत बुरी आ रही है। तो डिलीवरी अच्छी आनी बुरी आनी ये तो पूरा लक पे है। ये बहुत टाइम का, मतलब दिस इज बेसिकली टाइम, एंड टाइम विल गिव यू द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू प्रेडिक्ट कि कौन से प्रोडक्ट को कौन से प्राइस रेंज में चलाना है, राइट। एंड सेकेंड रीजन डिलीवरी कम आने का ये भी है कि प्रोडक्ट सैचुरेट हो जाता है, राइट। वहाँ पे हम आते हैं where हम सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स में काम नहीं करते हैं, हम ग्लोबल सप्लाई चेन कंपनी बनना चाह रहे हैं। आज की तारीख में वी हैव क्रैक चाइना, वी वी हैव इंक्यूबेटेड अ लॉट ऑफ ब्रांड जिन जिन जो हमारे इन्वेंट्री और सप्लाई पे डिपेंडेंट है। और हमारे पास B2B बल्क ऑर्डरिंग फ्रॉम चाइना का भी ऑप्शन है। जिस तरीके से आपने प्रोडक्ट इंक्वायरी में दिखा रहेगा, आप कोई भी प्रोडक्ट की यूआरएल डाल सकते हैं, वहीं पे आप कुछ कोई भी नया प्रोडक्ट मंगाना होगा बाहर से, आप उसकी इंक्वायरी डाल सकते हो। हमारी टीम विद इन 48 आवर्स आपको उसका कोड दे देगी। कोई कोई केसेस में टाइम लगता है बिकॉज प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। मिले, आई मीन इन टर्म्स ऑफ चाइनीज फ्रेश इन्वेंट्री वर्सेस एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री, या आपको क्या लगता है, मतलब हाउ शुड पीपल लुक एट इट? दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, नो डाउट, है ना। सो मैं वही बता रहा था, जब 2019 में मैंने शुरू किया तो इट वाज लाइक आप कोई भी प्रोडक्ट चलाओ उसकी डिलीवरी बहुत अच्छी हो, उसका
सीपीपी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा था, बिकॉज नया प्रोडक्ट था लोगों के लिए, वो नई मार्केट में जैसे ही आता है वो बूम होता है। बट अब टाइम के साथ ना सप्लायर्स इतने सारे प्रोडक्ट लेके ही नहीं आ पा रहे थे ना, क्योंकि जो वॉल्यूम में चलता था लोग वही लेकर आ रहे थे। बट अगेन अगर इंडिया में कोई अभी भी बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट चाइना से लेकर आता है तो वो चलता ही चलता है। उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जो आप हमारे लिए सोर्स करके लेकर आए थे, स्पाइडर वेब स्लिंगर हाँ मोमिटॉड के लिए, बेबी हाँ लामा ब्रांड के लिए। उसमें वो सबसे पहले हम लेकर आए, सो हमने उसके पहले 5-6 हजार पीस बेच दिए ना, प्रॉफिटेबल 80-85% डिलीवरी पे बेचे। सो एग्जैक्टली। और क्या आप अपने आप आपको जो प्रोडक्ट प्राइस पे सेल करना था उस पे सेल कर पाए? हाँ हाँ, मतलब मैंने बहुत अच्छा मार्जिन भी रख लिया, और बिकॉज कंपटीशन मुझे कितना था उस टाइम पे उस व्हेन आई प्रोडक्ट? स्टार्टेड इट वाज जीरो, बिकॉज कोई था ही नहीं मार्केट में, हम ही तो लेकर गाइस आए थे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इनसाइट दैट अगर आप कोई प्रोडक्ट को मार्केट में ले आ रहे हो, आप मार्केट को उस प्रोडक्ट पे मोनोपोलाइज कर सकते हो जब तक वो कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है। और चाइनीज इन्वेंट्री का बेस्ट पार्ट यही है, देखो एट द एंड ऑफ द डे कॉपी तो होना ही है ना निलय। लोग तो बैठे हाँ, ही लाइब्रेरी वो देखिए। कॉपी हुआ, वो एग्जैक्टली 2 से ढाई महीने बाद कॉपी हुआ, और अब वो इतना कॉमन हो गया कि अब उतना साइज सीपीपी नहीं आ रहा, उतना अच्छा डिलीवरी नहीं आ रहा। बट स्टिल वो जो पहले 3 महीना होता है उसमें तो पैसे कमा सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, ठीक है, समझ गए समझ गए। तो आई गेस वो किसी ने डिलीवरी का बोला था यार, जो मुझे जानते हैं उनको पता है मेरे डॉग्स के पेट का नाम टाटा गुस्तू है, सो आप कंपनी वेरीफाई कर सकते हो। ये मेरी डिटेल है। अनुभव एक बार लास्ट मंथ का दिखा देना, बिकॉज ऐसा नहीं था कि आई जस्ट स्टार्टेड इस कुछ भी करना इनके साथ। पहले मैंने बहुत छोटे नंबर किए हैं। Yeah, so अनुभव this प्रोडक्ट is the मत last one दिखाना, प्रोडक्ट मत performance. दिखाना। Oh, sorry, sorry. Sorry, sir. सो मिले या वो लाइक 80% डिलीवरी ड्रॉप शिपिंग में कॉमन है अनकॉमन है? इट्स वेरी अनकॉमन, मतलब नहीं आ सकती यार। हाँ, और कोई एक दिन में और डिलीवरी क्रैक इवन कर सकता है क्या? नहीं, इवन मैं सेल्फ शिप में भी अभी शायद मेरी नहीं आ रही थी, बट यहाँ से आ रही है, तो मैं वही थोड़ा मैं खुद भी तो मतलब वो ऐसा था क्या कि अलग हुआ है आपके ये वाले स्टोर में 80% डिलीवरी आ गई? अ, सबसे पहले तो हम टाइमली पिकअप था। इवन जहाँ पे डिले हुआ है मैंने दूसरे वेंडर से निकलवा दिया, जो आप ऑप्शन दे रहे थे मुझे कि हम दूसरे वेंडर से निकलवा सकते हैं। सेकंड, जैसे मैंने बोला ब्लू डार्ट एयर से निकालना था मुझे, क्योंकि मैं सेल्फ शिप में भी सारे पैकेट ब्लू डार्ट से ही निकालता था। यानी अब हम्म। जो मेरा बेबी लामा पे हो रहा है वो ब्लू डार्ट से जा रहा है, तो मुझे चाहिए था कि मुझे ब्लू डार्ट मिल जाए, और मैंने वही किया। सबसे इम्पोर्टेंट था कि एग्जैक्ट वैसा प्राइसिंग जो, क्योंकि कई लोग शायद इसको थोड़ा ज्यादा प्राइस कर देते, कई लोग इसको थोड़ा कम प्राइस कर देते, तो अपना मार्जिन नहीं निकाल पाते, लॉस वहां सब आ जाता है। मे एग्जैक्टली। बी इसको थोड़ा कम प्राइस करके मैं थोड़ा और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी ला सकता था, मे बी 2-3%, बट वो मेरे प्रॉफिट्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस लाती नहीं। ओके। तो राइट प्राइसिंग आई गेस, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि उस समय कंपटीशन आई गेस नहीं था इस प्रोडक्ट का जब मैंने चलाया है। सो या अब इस महीने का भी अच्छा, दिखा सकते हैं। या एग्जैक्टली निले निले, या आपने अभी प्रोडक्ट रिसर्च का एक पॉइंट निकाला। हाँ, क्या प्रोडक्ट सैचुरेट होने के बाद रिवाइव होते हैं वापस? यस यस, ये वही प्रोडक्ट है उस जो अपॉर्चुनिटी एक को बहुत। ढूंढना कैसा है? आपके हाँ, पास स्किल है, आपके पास वो तीसरी आंख है। लोगों को वो मास्टर करना है, राइट? इट इज लाइक मेडिटेशन। एक दिन में इट नहीं जैसे होने मैंने वाला। कहा वो एक दिन में नहीं होता, जैसे मैंने कहा हाँ ना कि यू जस्ट आपको वो एक रेगुलर चलते रहना चाहिए रिसर्च प्रोसेस। आप सो रहे हो जाग रहे हो, कई बार मतलब सपने में भी प्रोडक्ट आते हैं, तो वो इतना ज्यादा आपके साथ हो जाए कि जब ये होने लगता है यू जस्ट सी द प्रोडक्ट एंड आप बोल सकते हो कि ये चलेगा नहीं चलेगा। ओके ओके। तो बट उसके लिए जो मैंने बताया ना, मैं बहुत यही जो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, मैं कोई पेड टूल यूज नहीं करता। आई यूज पेड टूल ओनली टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ माई रिसर्च प्रोसेस, बट बट आप जो उसको बेसिक होता उसको है। उसको गो टू नहीं बोलते हो ना कि पहली नहीं वो नहीं नहीं, चीज मेरा नहीं करना हमेशा आप ये, शुरू कर दो। आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस, जो स्टेप मैंने बताया था एग्जैक्टली वहीं से चालू करता हूँ मैं। ओके, ऑसम। अभी निले, इन टर्म्स या ऑफ इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग रिकमेंडेशन, मतलब देखो मैं या वो नहीं कहूंगा कि वी आर द बेस्ट, ठीक है, वी आर ऑल्सो लर्निंग। हम्म, हम ऑडियंस के साथ ही ग्रो होंगे, और अगर हमारी ऑडियंस ग्रो नहीं होगी हम नहीं हो पाएंगे। तो मतलब कमिटमेंट है ये कि ऑडियंस को ग्रो करना है तो ही हम ग्रो होंगे, राइट? तो या इन टर्म्स ऑफ अब्लीक कंपैरिजन मार्केट में देखो प्लेटफॉर्म्स हैं, और नो डाउट। तो मतलब इज देयर एनीथिंग एक्स्ट्रा यू फील दैट
we are like, let's say कि what is one of the best things that we have as of now? आपको क्या लगता है? तो फॉर मी इट वाज, मैंने आई गेस 6 7 महीने हो गए आपके साथ काम करते हुए. हाँ इट वाज अ लाइक रेगुलर कम्युनिकेशन जो था टीम के साथ कि मेरा प्रोडक्ट हाँ कहाँ है, कब शिप कब आ जाएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैं अपने कैंपेन्स प्लान करता था. या जिस स्पीड से चीजें रिजॉल्व हुई, क्योंकि अभी 2 days बैक देयर वाज अ इशू जहाँ पे कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया था, एंड उसने रिफंड मांगा, और वो सोर्स इन्फी से ही गया था. मैंने अपने कैम को एक मैसेज किया है और वो 5 मिनट के अंदर रिजॉल्व हो गया, जो कि शायद एक बहुत बड़ी चीज थी, कि क्योंकि वहाँ कई जगह मुझे काफी बेसिकली आप लंबे कह लंबे रहे हो मेल कि करने पड़े. promptness ऑफ या रिस्पॉन्स इज गुड इनफ. या चाहे चाहे इशू रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ सेकेंडरी है, बट एटलीस्ट ये है ना कि एटलीस्ट ट्राई तो हुआ उस पर. ठीक है, ठीक है, समझ गए. बट एट द सेम टाइम देखो यार, कुछ ना कुछ हमारे एंड पे भी लैग है, राइट? हम बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन है एज ऑफ नाउ, वी आर प्लानिंग और ग्रोथ. एनी पीस ऑफ एडवाइस दैट यू फील कैन मेक, देखो अभी आज की तारीख में जिन्होंने वेबिनार ज्वाइन किया है, मोस्ट ऑफ देम वुड बी समवन हु इज न्यू, राइट? इनको सीखना है आगे आगे कैसे बढ़ते हैं ड्रॉप शिपिंग के रास्ते में. तो क्या चीजों की एडवाइस आप हमें देना चाहोगे विथ रिस्पेक्ट टू पीपल हु आर न्यू ऑन द प्लेटफॉर्म? हाउ डू वी, देखो पता है, आदमी को डीमोटिवेट होने के लिए सेकंड भी नहीं लगता यार, है ना? ये है. तो आई मीन अंडरस्टैंडिंग, आपको 6 साल 7 साल 8 साल लगे इसको क्रैक करने के लिए, और ये किसी ने एक दिन में तो क्रैक करना नहीं है. तो आप क्या एडवाइस करोगे एज एज वी ऑनबोर्ड न्यूअर सेट ऑफ कस्टमर्स जिनको हम बेसिक लेवल से ऊपर लेके जा रहे हैं, वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन को क्या अश्योर करना है? सर अश्योर देम कि उनके जो देखो, उनके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो बहुत शायद हमारे लिए सिली हो सकते हैं, जो हमें लगता है बिकॉज हम सीख लिए हैं वो चीज़ें, बट इवेंचुअली 2016 में वो वही था जो सिली क्वेश्चन पूछता था. तो हमारे उनके सिली क्वेश्चन को ना सिली ना समझ के उनको एक्चुअली सही से एग्जैक्टली. बताया जाए, चाहे वो मार्केटिंग पार्ट हो. बिकॉज मार्केटिंग पार्ट के लिए आई हैव दैट इंडियन ई कॉम एम्बेसी ग्रुप, जहाँ पे मैं आंसर कर रहा हूँ. मैं वैसे ही और लोगों से कनेक्ट हो रहा हूँ, रेगुलर इवेंट कर रहे हैं. जो हमने लास्ट इवेंट किया वहाँ पे मुझे लाइक 50% ऐसे लोग मिले जिन्होंने शायद कभी सुना नहीं था ई कॉमर्स, उन्होंने जस्ट एक बार कहीं पढ़ लिया एंड देन दे केम. तो वो सारी चीजें काफी मुझे इफेक्ट करी कि अब इन लोगों को जरूरत है, तो उनको एक राइट गाइडेंस दी जाए एज अ प्लेटफॉर्म. उनको जो भी इश्यूज आ सकते हैं जो हमने फेस किए हैं ऑलरेडी, क्योंकि अच्छा. मैं आपके साथ जुड़ के वही चीजें बता रहा हूँ कि शिपिंग में इश्यूज आता है, डिलीवरी परसेंटेज कम होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट कम हो जाता है, तो उसको कैसे इम्प्रूव करना था. हाँ अगर हाँ टाइम का इशू हुआ कि 2 दिन डिले हुआ पिकअप, तो 10% डिलीवरी चली गई. अगर क्योंकि अभी क्या है कि मार्केट में गलत भी बताने वाले बहुत हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जस्ट नंबर्स दिखा देते हैं, पीएनएल नहीं दिखा रहे कि यार हाँ हाँ, इवेंचुअली ये हो बात क्या है. रहा था. बहुत घर पे सारी चीजें हो कितना रही पैसा थी. लेके जा रहे हो वो हाँ, इम्पोर्टेंट है. सो वो नहीं दिख रहा था. तो होता क्या था उसमें ना, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते थे हाँ जो शायद शॉर्ट टर्म मनी दिखा दें. तो हमें जो भी नए लोग आ रहे हैं ना, उनको उन प्रोडक्ट से दूर रख के एटलीस्ट ऐसे पे भेजना है कि यार वो कुछ आगे ब्रांड बना सके, कुछ सोच सके कि आई कैन थिंक ऑफ समथिंग बिग इन दिस नीश, लॉन्ग टर्म सोच सकूं. तो आई गेस नए लोगों को उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए. शॉर्ट टर्म मनी, या इट इज देयर, इट कैन गिव यू लाइक हैप्पी वाला फैक्टर फॉर सम टाइम, हाँ बट वो हाँ. इवेंचुअली जो लॉन्ग टर्म करने में आपको हैप्पीनेस मिलती है, वो शॉर्ट टर्म में नहीं मिल सकती. चलो यार. और मतलब या इन टर्म्स ऑफ, मतलब मेरे को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड याद है, आपने मेरे को एक चीज पूछी थी कि पारस, मेरी 80% डिलीवरी आ रही है प्रोडक्ट की, अगर ये प्रोडक्ट लीक हो गया तो? Exactly right. So, हाँ, yeah, guys, we as a platform understand the amount of money, time invested to find a winning product, and it is our commitment that अगर आपने मेहनत करके कोई प्रोडक्ट ढूंढा है तो हम उसको सेफगार्ड करें, आपके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करें, सो दैट यू कंटिन्यू योर जर्नी ऑन अ प्लेटफॉर्म. बट हम ये नहीं कहेंगे यार कि हर हर बार ही पॉसिबल है, राइट? बिकॉज लोग खुद रिसर्च करके वो प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे और उस पर ऑर्डर देना शुरू करते हैं. So, you guys have to always keep this in mind that this game is a fast moving game. आप स्लोली खेलोगे, यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी. टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेस्टिंग के बाद आप सारे एग्स एक बास्केट में डाल रहे हो, वो भी रिस्की है, राइट? यू हैव टू कीप आइटरेटिंग. आज अगर आपका कोई प्रोडक्ट चला, कल अगर वो नहीं चला, तो आपके पास एक टेस्टिंग की पाइपलाइन होनी चाहिए, सो दैट आपका कैश फ्लो रुके नहीं, राइट? Any which ways, and question, any MOQ for brand packaging? Not at all. Reason being, अगर हम फॉर एग्जांपल बॉक्स लेते हैं, बॉक्स पे ब्रांड पैकेजिंग का MOQ अगर मीट नहीं हो रहा है, जिस विच इज लाइक 1000 2000
डिपेंड्स ऑन ऑल द डिजाइन। हम उसके ऊपर टेप टेप भी नहीं, हम उसके ऊपर स्टिकर्स लगवा देते हैं। स्टिकर्स इजीली प्रिंटेबल हैं, उनका कॉस्ट भी बहुत इफेक्टिव है। वी कैन इजीली just say that it takes 2-5 rupees extra on top of normal packaging जब हम उस पर स्टिकर लगाते हैं। हाँ, बट अगर आप कह रहे हो कि आपको बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, यू प्लीज शेयर दिस विथ योर कैम। वो कैम हमारे वेंडर के साथ निगोशिएट करके आपको गेट बैक कर देगा। वी वेरी ट्रांसपेरेंट ऑन प्राइसिंग। आप खुद का भी वेंडर से माल खरीदवा के हमारे पास पहुंचा सकते हो, फिर हम हमारे सप्लायर के पास भेज देंगे। सर मैं पढ़ लेता GST। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाय हाय गगन, यस यू आर। हाय। सो आपकी ना आवाज मेरे ख्याल से वो हो गई थी, या मेरे नेट में भी कोई इशू होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था, लेट्स से कि मैं अकेला ब्लू डार्ट से भेजना चाहूँ, हाँ, तो आप कुछ पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करते हो? यस यस यस, हमारे पास सारे कोरियर पार्टनर्स हैं और जो प्राइसिंग है अगर मैं लिमिट पार्टनर वाइज लगाऊं सेट कि होती है। हाँ, मैं ये नहीं करना चाहता कि मैं किसी और से, लेट्स से कि यार मैं अकेला ब्लू डार्ट से ही भेजना चाहूँ, और अगर नहीं जा रहा तो आपकी टीम नोटिफाई कर दे, सो दैट आई कैन टेक गगन, द नेक्स्ट डिसीजन। मैं जी आंसर कर जी। देता हूँ। गगन, मेरे सारे प्रोडक्ट जो अभी आपने पैनल देखा ना, उस पे A to Z जितनी शिपमेंट हुई है लास्ट मंथ इस मंथ, वो सारी ब्लू डार्ट से हुई है। जहाँ पे पिन कोड अवेलेबल नहीं होता है वहां पे टीम नहीं करती है, दे टेक द परमिशन कि वो ई कार्ड या जो भी बाकी ऑप्शन है वो हम्म। करना है तो दे कैन बुक इट फ्रॉम देयर। बट इवेंचुअली ओके। आई आई विल से कि यार देखो, ब्लू डार्ट मेजर रखो बट बाकियों से भी भेजो, बिकॉज मेरी लास्ट मंथ ई कार्ड से डिलीवरी परसेंटेज 67% आया है। सो उसको कैंसिल करना इज नॉट अ सोल्यूशन आई गेस। अगर आपको लग रहा है कि वो ई कार्ट या बाकी से नहीं आएगी डिलीवरी, तो बिकॉज 90%, 95% तो लोड आपको ब्लू डार्ट से जाएगा ही जाएगा। गॉट इट, So गॉट इट। we have one more question. Can we sell through your platform without a GST number? Yes, you can. It's just that कि जिनको GST का क्लेम चाहिए वो उनके लिए प्रेफरेबल है। आई थिंक अनुभव, आई थिंक वी शुड प्रेजेंट राइट, बिकॉज हम एक्सप्लेन कैसे कर पाएंगे। Yeah, So sir. all products have courier charges included। जो भी आपका कुरियर का प्रेफरेंस है उस हिसाब से हमारी टीम एक प्लान, सिस्टम का एक प्लान सेलेक्ट करके उसमें डालती है। whenever we have से ब्लू डार्ट की रिक्वेस्ट, तो आपको दिखेगा कि शायद 40-50 रुपए बढ़ गए हैं प्रोडक्ट की प्राइस पे जब वो पुराने प्लान पे थे। जो चार्जेस हैं बेसिकली आरटीओ वाले चार्जेस हैं जो हम ट्रांसपेरेंटली दिखाते हैं। बिलिंग सेक्शन में प्राइस प्लान का एक टैब है जहाँ पे वेट वाइज आरटीओ चार्जेस लिखे गए हैं। तो आंसरिंग योर क्वेश्चन इन वन गो, आपका जो फॉरवर्ड चार्ज है वो प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्लूडेड है। अगर वो प्रोडक्ट रिटर्न होता है तो उसका सिर्फ आरटीओ चार्ज होता है। मिले दिस हेल्प्स। हाँ हाँ, वो सो उनका जो प्रोडक्ट का कुरियर चार्ज है अगर स्पेशल There was a charge of for manual verification. We charge 5 rupees per call connected। एंड ये बहुत कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट है बिकॉज हर ड्रॉप शिपर की कॉलिंग की एसओपी अलग है। तो ये हम वॉल्यूम कंसिडर करके, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कंसिडर करके डिसाइड करते हैं, बट ऑन एन एवरेज इट्स 5 रुपीज पर कॉल। देन व्हाट अबाउट एसएलए ब्रीच, वी वांट टू सी दैट। एसएलए ब्रीच पे हम पेनल्टी चार्ज करते हैं हमारे वेंडर्स पे अशर, and we are very strict about it, and 96% of our orders are actually shipped before one day of SLA breach, so we are very cautious on that front. Again, it is something which is out of our hand because we are an aggregator। Supplier field पे क्या कर रहा है वो हम वो हमारे लिए कंट्रोल करना एट टाइम्स बहुत डिफिकल्ट होता है। बट इसको सॉल्व करने के लिए हमने फील्ड पे हमारे मैन पावर को डिप्लॉय किया है सो दैट दे कैन गो टॉक टू सप्लायर। अगर उसको एक भी परसेंट का डाउट हो तो बंदा जाके फील्ड पे वेरीफाई कर लेता है। नाउ मेजर मार्केट्स आर सूरत, मुंबई एंड दिल्ली। तो इन तीनों लोकेशंस पे हमारी ऑन फील्ड प्रेजेंस है टू काउंटर दिस। और एसएलए ब्रीच का फंडा ऐसा है कि हम एक प्रोडक्ट मल्टीपल सप्लायर्स के पास रखते हैं, तो जस्ट इन केस एक एक सेलर डिफॉल्ट कर गया तो बैकअप सेलर्स, बैकअप सप्लायर्स आर ऑलवेज देयर।
Very interesting question Shreyans ने raise किया है. How many days does it take to import products from China? We do 95% of our goods through air. जो प्रोडक्ट करंटली ट्रेंड में है वो तो 24 आवर्स में हमारे वेयरहाउस में आ जाता है. उसके बाद QC होती है, क्योंकि अगर हम इंडिया कुछ भेज रहे हैं तो हम एक बार वेरीफाई करके भेजें और कोई भी चीज़ की कमी ना हो. यूजुअली 48 to 72 आवर्स में कस्टम क्लियरेंस हो जाता है चाइना से, और वहाँ से शिपमेंट इन ट्रांजिट हो जाती है. It takes not more than 12 hours for it to reach Indian airport. The major challenge it takes is India custom clearance. Again, over a period of time, we have mastered it. So 10 to 15 days is a tat which is good enough given that the supply is ready. कुछ रिक्वेस्ट ऐसी आती हैं जो मेड टू ऑर्डर होती हैं, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का जो टाइमलाइन है, जो सप्लायर हमें कमिट करता है, हम आपको आगे बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट एज ऑफ नाउ नहीं है अवेलेबल विद most of the suppliers that we work with. It will take some time, so we tell you that in advance. I mean, this is very tricky to answer because प्रोडक्ट की जो प्राइस है चाइना में वो तो फिक्स्ड है, बट प्रोडक्ट का वेट और जो वॉल्यूम है उस बेसिस पे प्राइस में बहुत फर्क आता है. और हम एज ऑफ नाउ सिर्फ एयर में ही काम कर रहे हैं. रीज़न बीइंग कि 40 दिन का वेट करने के बाद अगर उस प्रोडक्ट की मार्केट खराब हो गई तो सबका लॉस होगा. तो बेस्ट वे इज दैट फाइंड अ प्रोडक्ट विच इज़ लेसर देन 200 grams, सो दैट उसकी कम से कम एयर फ्रेट की कॉस्ट लगे. और ट्राई टू सोर्स प्रोडक्ट्स विच आर चीपर, लाइक लेसर देन से $2, सो दैट उसकी इंडिया लैंडिंग कॉस्ट 340 रुपए के से अंदर हो. आई गेस सारे आंसर कर दिए सर. Great, yeah, So, great. Two offers. One is for China India lane. So if you come to our platform and you tell us that for a particular product you want us to import from China, we'll do it for you. 200 quantity of the product, we'll do it for you at a very at a very nominal cost. Addition to this, No, this is no nominal cost. We'll not charge anything for 200 units. वो Okay. ship होके डिलीवर हो जाएंगे, उसके बाद ही उसका पैसा रिकवर होगा. अगर उनकी डिलीवरी नहीं आती है तो that is one of the I'm sorry Namit, I'm doing 2-3 things at a time. It can happen, don't mind. I apologize for this. Anyways, again, 200 units will not charge anything. We'll only charge if they get delivered and you make money. We want this to be easily accessible to people who think यार 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, but नहीं यार, we can do this for sure. Second offer, Jayant, please announce. yes, second offer अरे is नहीं, group में please भेज देना लोगों को यार. second offer is if you sign up on Source Infy panel, for initial 500 RTO orders will be waived off. So there will be no charges for RTO for initial 500 orders with us. So again, we want drop shipping to be encouraged. हो सकता है कि पहले कुछ ट्रांजैक्शन जो आप करो वहाँ पे आपको लगे कि RTO पेनल्टी की वजह से मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम देखो लर्निंग कर्व है, टाइम लगेगा सीखने को. नो प्रॉब्लम, वी विल सपोर्ट यू देयर. 500 ऑर्डर तक आप शायद मास्टर करोगे. अगर आप 100 ऑर्डर की बैंडविड्थ में काम कर रहे हो तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा. एंड दिस इज अगेन टू हेल्प यू गाइज गो थ्रू दिस जर्नी. How long is this offer valid? ठीक है, anything related to offer would be shared in the group which you guys are a part of. Jayan, please do the needful here. Okay. So thank you so much guys for joining for the interactive session. I apologize on behalf of the team for the initial hiccups which we have due to technical reasons. But thank you so much for joining. It was love to interact with all of you. We'll keep continue doing these type of sessions in future as well. We have taken the feedback which is given in the chat bar, and we'll certainly work on those and we'll get back to you accordingly. So yeah, guys, we can conclude the session. Thank you so much for sparing time and joining with Source Infy. Thank you and bye bye. Take care.